بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف جاری آپریشن کے 37ویں روز تک 5485 سے زائد بجلی چور گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر دی۔ اب تک بجلی چوروں سے ڈیٹیکشن بلز کی قیمت میں 1 ارب 60 کروڑ 35 لاکھ کے لگ بھگ کی خطیر رقم حکومتی خزانے میں جمع کروائی جا چکی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر قاسمی کی رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان اور وزارت توانائی کی ہدایت پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کی زیر نگرانی لیسکو کے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کو 37 روز مکمل ہو گئے۔ لیسکو ترجمان کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق لیسکو ریجن میں 37 روز کے آپریشن کے دوران 5485 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن میں 17397 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 17242 کنیکشن کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئیں، جن میں سے 16164 درخواستیں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ بجلی چوروں کو اب تک 3,59,57,447 یونٹس چارج کیے گئے، جن کی قیمت 1,07,54,820 کے لگ بھگ ہے۔ لیسکو میں 37ویں روز کے آپریشن کے دوران تمام اضلاع میں 387 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے تھے۔ 385 بجلی چوروں کے خلاف FIRs کی درخواستیں متعلقہ تھانوں میں دائر کروا دی گئی ہیں، جن میں سے 214 FIRs رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، جبکہ 48 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پکڑے جانے والے بجلی چوروں میں 3 انڈسٹریل، 14 کمرشل، 1 زرعی، 169 ڈومیسٹک کنیکشن شامل ہیں۔ تمام کنیکشن منقطع کر کے ان کو 7,19,690 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے، جن کی مالیت 3,48,09,756 کے قریب ہے۔ تفصیلات کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف کیے جانے والے آپریشن میں بڑے کمرشل صارفین بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں، جبکہ ان کے کنیکشن بھی منقطع کر کے ان کو ڈیٹیکشن یونٹس چارج کیے گئے ہیں، جن میں چمن کالونی شادرہ کے علاقہ میں کنیکشنز کو 14,000 یونٹ ڈال کر 70 لاکھ روپے، سرکلر روڈ میں کنیکشنز کو 9900 یونٹس کے عوض 5 لاکھ روپے، شادرہ ٹاؤن میں 7,000 یونٹس کے عوض 4,60,000 اور چک نمبر 565 ڈوگرا میں ایک کنیکشن کو 15,753 یونٹس کے عوض 4,26,644 روپے کی رقم چارج کی گئی۔ واضح رہے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن وفاقی پاور ڈویژن کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق کیے جا رہے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر بذات خود آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے لیسکو چیف کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک بلا تفریق گرینڈ آپریشن جاری رہے گا۔ آپریشن کے دوران بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی کرنے والے لیسکو افسران و ملازمین کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بجلی چور خواہ کتنا ہی با اثر ہو، ہمیں کوئی خوف نہیں، بجلی جہاں بھی چوری کی جائے گی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بجلی چوروں کی وجہ سے آج ہمارے ملک کو بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے۔ ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق آراوالا مرکزی پریس کلب رجسٹر میں پروقار محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں علامہ ابو صالح محمد عمر فریدی، علامہ قاری زبیر اور قاری محمد دین نوری نے خصوصی شرکت کی۔ پرنور محفل کی صدارت رانا حق نواز صدر مرکزی پریس کلب نے کی۔ محفل کا باقاعدہ آغاز لاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت علامہ قاری زبیر نے حاصل کی۔ پروفیسر عباس علی عارفی اور قاری محمد دین نوری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ سید محمود الحسن شاہ نے نقابت کے فرائض ادا کرتے ہوئے دعوت خطاب دینے کے لیے استاد لطیف الرحمان کو اسٹیج پر دعوت دی۔ استاد لطیف الرحمان نے شان مصطفیٰ میں اشعار پیش کرتے ہوئے علامہ ابو صالح محمد عمر فریدی کو دعوت خطاب دی۔ اس پرنور محفل میں ملک شفیق چیئرمین پریس کلب تحصیل عارفالہ میاں ذاکر حسین موہل، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری یونین آف جرنلسٹ رجسٹر عارفالہ حاجی محمد شفیق پھول، سینئر نائب صدر یونین آف جرنلسٹ رجسٹر ملک ندیم اختر، ملک نعیم اختر، ساجد لطیف، ریاض احمد شاد، حاجی محمد رمضان، علی اصغر ریڈی، مرزا امتیاز علی، عمران جویا، جنرل سیکرٹری اور دیگر صحافی حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام شرکاء اور علماء کرام نے بہترین محفل میلاد کے انعقاد پر چیف ایگزیکٹو چودھری محمد اقبال کو مبارکباد پیش کی، اور اختتام پر اجتماعی دعا کے بعد شرکاء کو لنگر بھی کھلایا گیا۔
खबर शामिल करते हैं टंडो जाम से। गांव सुल्तान मक्सी और गांव कादर बख्श मक्सी की मकीनों का मर्द खवातीन और बच्चों हैदराबाद मीरपुर खास पर धरना। रोड ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। 3 माह से बिजली की बंदिश, मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हमारे इलाके का बिजली का ट्रांसफार्मर 16 अगस्त से वापटा इंतजामिया उतार के ले गए हैं। हम 3 माह से बिजली से महरूम हैं। हमारे बिल अदा करने के बावजूद हमसे रिश्वत मांगी जा रही है। मुजाहिरीन 3 माह से बिजली ना होने के बावजूद इस माह में 200 यूनिट चार्ज किए गए हैं। बिजली की बहाली तक धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में वाजिया कमी और डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तकीम होने की वजह से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में निगरान हुकूमत की जानिब से वाजिया कमी की गई है। इसी हवाले से देखते हैं पाक वतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारक की रिपोर्ट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में वाजिया कमी और डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होने की वजह से तारीख में पहली मरतबा निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल में बिल तरतीब 40 रुपये और 15 रुपये कमी की गई है, जिससे पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे और डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे हो गई, जिससे शहरियों के चेहरे खुशी से झूम उठे। और पेट्रोलियम मसनूआत में वाजिया कमी की वजह से शाय खोरोनोश पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी समेत सब्जी, फ्रूट, खाद में कमी का मुतालबा कर दिया। 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करके गवर्नमेंट ने बड़ा ऐसा इकदाम किया है, और इसी तरह जो डीजल की इन्होंने 15 रुपये कीमत कम की है उसको भी 40 रुपये कम करना चाहिए था, ताकि किसानों को और ट्रांसपोर्टरों को बड़ा उसका फ़ायदा होता और आम आदमी को किराया कम होता। ये जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, हुकूमत का बड़ा ऐसा इकदाम है और बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, दूसरी अशिया खोरोनोश में भी कमी होनी चाहिए। हाँ जी, जिस तरह पेट्रोल कम होया है इहदे नाल नाल सीमेंट ते बिजली का भी रेट कम होना चाहिए और बाकी चीज़ों का रेट भी कम होना चाहिए। जैसा कि शहरियों का कहना था कि निगरान हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत में वाजिया कमी का ऐलान किया गया है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बायस जो महंगाई का तूफान आया था इसमें भी वाजिया कमी होनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़, पाकपतन। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल चन्योट की माह सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। माह सितंबर में एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल चन्योट को 40 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हो गई। घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़े की 10 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। खवातीन को हरासा करने की 15 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े की 10 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। लेन देन के मामला, तशद्दुद वगैरह की 8 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। तमाम दरख्वास्तों पर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए खवातीन की दादरसी यकीनी बनाई गई। खवातीन में एहसास से तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। खवातीन किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में विमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप, एमरजेंसी नंबरों से मदद हासिल कर सकती हैं। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासानी, बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। इंचार्ज एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल लारैब शाहिद। अरुणाबाद में ताजी तंजीमों की तरफ से फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाबाद की ताजर तंजीमों की तरफ से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म और जबर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में अनारकली बाजार, जामिया बाजार, मदनी बाजार के ताजरों ने मेन फुआरा चौक तक एहतजाजी रैली और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीनियों के हक में नारे दर्ज थे। रैली में शरीक मुकर्ररीन सदर गला मंडी सदाकत पंसूता, मारूफ सियासी रहनुमा हाजी शेख गुलजार अहमद, आसिफ एजाज, हाफिज उमैर यासीन दीगर ने इसराइल को दहशतगर्द करार देते हुए कहा है कि मुसलमान ममालिक को फ़लस्तीनियों की मुसलसल मदद करनी चाहिए और हम इस्लामी ममालिक से मुतालबा करते हैं कि अपना असर और सोख इस्तेमाल करके इसराइल फ़लस्तीन की जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर हमारे दिल खून के आंसू रो रहा है। हज़ारों माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं और बच्चे यतीम हो चुके हैं। इसराइल की गुंडागर्दी को फिलफोड़ बंद करवाया जाना चाहिए। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। जिला घोटकी में डाकू राज अब भी बरकरार, डाकुओं का खात्मा ना हो सका। घोटकी के कच्चे के डाकू मजीद जोर पकड़ के साथी के कत्ल के शबे में 2 अफराद कत्ल जबकि 2 को जख्मी कर दिया। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में।
घोटकी के कच्चे के डाकुओं को लगाम डालना नामुमकिन होता जा रहा है। रात गए उबाड़ों के करीब मुरी शाख में दर्जनों डाकुओं ने हमला करके एक ही खानदान के 2 अफराद हलाक और 2 को जख्मी कर डाला। कच्चे के दर्जनों डाकुओं ने पक्के की हिफाजत के लिए कायम पुलिस चौकियों का पोल खोल दिया। मोटरवे M5 के साथ कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों पर 100 से ज़ायद पुलिस चौकियां कायम हैं, जिस पर तैनात पुलिस एहलकार 1 दर्जन डाकुओं को भी ना पकड़ सके। सुनते आ रहे हैं तो 1.5 साल से ये जो है ना कच्चे का ऑपरेशन, पुलिस अभी रेंजर भी आ गए, लेकिन पता नहीं क्यों इतने तक कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंध पुलिस में भी बदलियां हो रही हैं, लेकिन 1.5 साल हो गए कोई ऑपरेशन से तो पता नहीं। अभी डाकू भी जो आ रहे हैं जो कच्चे वाले पक्के में, और इतनी वारदातें हो रही हैं दिन ब दिन, शहरों का जीना हराम कर दिया है, लूट मार कर रहे हैं और उनके बाद आदमियों को उठा कर ले जा रहे हैं। तो पुलिस खामोश है, जान माल की भी हमारी हिफाजत अभी नहीं हो रही, क्योंकि पुलिस अभी तक खामोश है। IG सिंध और SSP को हम ये इल्तिजा करते हैं कि बराए मेहरबानी कच्चों वालों के लिए कोई ऑपरेशन करे ऐसा, जैसे हम आवाम के लिए जीना मुश्किल ख़त्म हो जाए। गवर्नमेंट को हम अपील करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके कच्चे में ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। हमारा जीना जंजाल हो गया है सर, मेहरबानी करके हमारे शहर से निकलते हैं, हम गांव के ले जाते हैं, हमारी दिहाड़ी जो कमा के ले जाते हैं वो दिहाड़ी हमारी छीन लेते हैं। मेहरबानी करके कच्चे में ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। कच्चे के डाकुओं की एक गैंग को दश्ती खानदान पर उसके साथी की हलाकत का शुबा था, जिस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम है, जबकि शहरी डाकू मारे तो बदले में 4 हलाक कर दिए जाते हैं। शहरियों का पुलिस से एतमाद उठ गया, पाक आर्मी ऑपरेशन करे शहरियों ने मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ ढेर की। शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अक्टूबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिला में मिंचनाबाद में भी भरपूर तैयारियां जारी हैं। मिंचनाबाद से हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल काफिला की रवानगी के लिए मशावरती वर्कर्स कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की आगाही मुहिम के सिलसिला में मरकजी अंजुमन ताजान समेत सियासी समाजी शख्सियात मियां एजाज अहमद जरगर, मियां आमिर नदीम जरगर, मियां मोहम्मद आरिफ जरगर की तरफ से शहर में एक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत साबिक मेंबर पंजाब असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फिदा हुसैन वट्टू ने की। मदनी चौक पर मियां फिदा हुसैन वट्टू का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। रैली के शुरा पर गुलबाशी की गई और ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाला गया। रैली में मुस्लिम लीग परचमों की भरमार नजर आई। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। बस में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहा के ज़ेर तमाम मिलाद अवार्ड सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर बेहतरीन इंतजामात और शहर भर में लाइटिंग और सजावट करने वालों को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के सब्ज़ाजार में बस में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहा के ज़ेर तमाम सालाना मिलाद अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बस में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहा के अहदेदारान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर शहर भर में सजावट, लाइटिंग और जुलूस की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात करने पर मुकामी इंतजामिया और मुख्तलिफ बाजारों और गली मोहल्लों की सजावट करने वालों और सहाफ़ियों को बेहतरीन कवरेज करने पर एहसासी शील्ड से नवाजा गया। इस मौका पर बस में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के अहदेदारान का कहना था कि इस तकरीब का मकसद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई करना है, ताकि वो आइंदा भी इसी तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अपने घरों गली मोहल्लों को इसी तरह सजाकर अपनी वालहाना मोहब्बत का इज़हार करते रहें। सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब सराफ ने मुनफरिद अंदाज में सपासनामा पेश किया। तकरीब में मेहमान खसूसी पीर सैयद फूल अली शाह सरकार, असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद, चीफ ऑफिसर बल्दिया इमरान अली वट्टू और बस में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहा के अहदेदारान समेत सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। जनाब आले रसूल औलादे अली जनाब सैयद अली फूल शाह साहब फरमा रहे हैं, मैं उनको दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा मौजूद उलमाए किराम, सियासी आजरान के दोस्त, अफसाने वाला, गल्ला मंडी के अरकान और सब्जी मंडी से आए हुए अरकान, बुकला साहबान, सहाफ़ी, मुकामी इंतजामिया आने पर खुश आमदीद कहता हूँ।
खबर शामिल करते हैं हारून आबाद से। वाइटल इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम सूबाई सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार मौज़ा पाकिस्तान के माशी हालात की बेहतरी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुनाकिद किया गया। सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी डायरेक्टर वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी तैयब सईद थे। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर शेख शफीकुर रहमान, डॉक्टर मोहम्मद नासिर रहीमिया खान, मुफ्ती मोहम्मद शकील रावलपिंडी, डॉक्टर आशिक हुसैन मुल्तान, मजहबी स्कॉलर फजल रहमान चिश्तियाँ, मजहबी स्कॉलर अब्दुल मुंतकीम ने शिरकत की। सेमिनार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अब्दुल रहमान और ऑर्गेनाइजर डॉक्टर साजिद शाहीन थे। सेमिनार जिसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाज़ुर में और इस्लामी तालीमात और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली माशी इस्लाहात का अहाता करते हुए नामवर इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर शेख शफीकुर रहमान ने कहा कि इस्लामी फलाही रियासत का तस्वुर अमली तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने पेश किया और तारीख़ इंसानी में ये सबसे बेहतरीन निज़ाम करार पाया, जिसको मौलकीन आज भी सुनहरे हरूफ में रकम करते हैं और आज भी जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक अपने ममालिक में नाफिज किए हुए हैं। बागबानी, मवेशी पालने, दस्तकारी वगैरह के छोटे छोटे मंसूबे बनाकर हुकूमती सरपरस्ती में चलाए जाएं। ज़री और सन्नती मंसूबा बंदी साइंसी बुनियादों पर की जाए। अर्ज़ अमवात को नई टेक्नोलॉजी मुतारुफ कराते हुए ज़ेर काश्त लाया जाए, जो बेरोज़गारी और गुर्बत के खात्मे के लिए मुमदद व मुआवन भी साबित होगी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करेगी। नंबर 6, इज्तिमाई माशी मनसूबाबंदी के ज़रिए तलब और रसद की जो तवाज़ुन है उस एतदाल को बरकरार रखा जाए ताकि अफराद ज़र या किसार बाज़ारी की नौबत ना आए। मुस्तशरिकीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक एक माशी लिहाज से गरीब तबके से साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके सद्देबाब के लिए और उनके ख्यालात की तरदीद के लिए माशी और इक्तसादी अफकार की दुरुस्त सिमत में तहकीक पर मबनी अवाम के सामने सिफारिशात के लिए हम कुछ कर सकें, उस सिलसिले की ही ये कड़ियाँ हैं। ये जो वाइटल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, आज का ये जो प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें उस सिलसिले की ही कड़ियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर सिलसिले में हर कड़ी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें दिन ब दिन बरकत अता फरमा रहे हैं और ये सब आप भाइयों की काविश है, आप बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, आपकी काविश के सिलसिले में हम आज यहाँ पे खड़े हैं। हर आदमी या तो तबसरा करके लोगों को मज़ीद उलझन में डाल देता है या फिर सारा मलबा दूसरों पर डालकर फारिग हो बैठता है। अमली इक़दाम की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जा रही। हमने अपने मकाले के लिए नबी अलैहिस्सलाम और मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचाएँ। नंबर 3, तिजारत का फ़रोग़। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मुल्कों का तिजारती सफ़र फरमाया, मुल्क शाम, मुल्क यमन और शामिल करते हैं हारून आबाद से। वाइटल इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम हारून आबाद में सूबाई सीरतुल नबी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सीरतुल नबी की रोशनी में पाकिस्तान के माशी निज़ाम की बेहतरी पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़ेर इंतज़ाम इदारा वाइटल इस्लामिक रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से सूबाई सीरतुल नबी सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें सीरतुल नबी की रोशनी में पाकिस्तान के माशी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने काबिल अमल तजावीज़ दी, जिसका मरकज़ी नुक्ता अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए कारोबारी और माशी असूल थे। मुकर्रिरीन ने सूद के खात्मे को पाकिस्तान के माशी निज़ाम की खराबियों की जड़ करार दिया। सेमिनार में शरीक 5 स्कॉलर्स को वाइटल ग्रुप की तरफ से अवार्ड्स और कैश इनामात भी दिए गए। जौहर दिल अजीज शख्सियत डायरेक्टर वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी तैयब सईद ने अपने दस्ते मुबारक से दिए, जिसमें पहली पोजीशन डॉक्टर हाफिज मोहम्मद नासिम ऑफ रहीमिया खान, दूसरी पोजीशन मुफ्ती मोहम्मद शकील ऑफ बहावलपुर और तीसरी पोजीशन आशिक हुसैन ऑफ मुल्तान, चौथी पोजीशन फजल रहमान ऑफ चिश्तियाँ, जबकि 5वीं पोजीशन अब्दुल मुंतकीम ऑफ कसूर ने हासिल की। सेमिनार में बहावलपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर शेख शफीकुर रहमान ने खसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी तैयब सईद थे। तकरीब में उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी स्कॉलर्स ने भी भरपूर शिरकत की। लोगों में मेरे जैसे बंदे का बोलना तो वो सूरज को जो है दिया दिखाने के मुताबिक है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि बाज़ बात हम बहुत अच्छा बोलते हैं। तैयब सईद साहब वो
मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद जो मुकाबला अबाड़ू से हमारे तालका रिपोर्टर गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी घोटकी मनीर अहमद कहाड़ू का जिला घोटकी से तबादला करके इनकी जगह एसपी मोहम्मद अनवर केतरान को तैनात कर दिया गया। एसपी मनीर अहमद कहाड़ू की तब्दीली की वजह SHO की तकर्रियों और समाजी बुराइयों और घोटकी में अमन व अमान का फुकदान है। समाजी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और नए एसपी मोहम्मद अनवर केतरान से समाजी बुराइयों पर काबू पाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।